السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ نورانی قاعدہ کا سبق ہمارا چل رہا ہے جس میں 9 تختی ہم نے مکمل کی ہے۔ آج ہمارا تختی نمبر 10 اخفا پڑھنا ہے۔ دیکھیں ہم نے پڑھا ہے کہ تنوین اور نون ساکن کے 4 قاعدے ہیں: اظہار، اخفا، اقلاب اور ادغام۔ اظہار ہم پڑھ چکے ہیں کل کی ویڈیو میں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے اخفا۔ تنوین اور نون ساکن کا دوسرا قاعدہ اخفا، پہلا تھا اظہار جو ہم پڑھ چکے ہیں، دوسرا اخفا۔ دیکھیں اظہار کے معنی آتے ہیں ظاہر کرنا، یعنی کھولنا۔ تنوین اور نون ساکن کے آواز کو کھول کے پڑھنا، ظاہر کر کے۔ اخفا کے معنی آتے ہیں چھپانا۔ اب کس کو چھپانا ہے، کیسے چھپانا ہے، کیا کرنا ہے، وہی ہمیں اس میں پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تنوین اور نون ساکن کا قاعدہ اخفا۔ اخفا کے معنی چھپانا۔ حروف اخفا 15 ہیں۔ حروف اخفا کتنے؟ 15۔ اب یہ جو حروف اخفا 15 ہیں، سوال ہے انہیں حروف اخفا کیوں کہتے ہیں؟ بیکاز ان حروف میں اخفا ہوتا ہے، اس لیے ان حروف کو حروف اخفا کہتے ہیں۔ کب اخفا ہوتا ہے وہی ہم پڑھیں گے۔ حروف اخفا 15 ہیں: تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، تو، وا، فا، قاف، کاف۔ یہ سارے آتے ہیں 15۔ یہ حروف 15 ہیں، تا سے قاف اور کاف تک، کاف چھوٹے کاف تک، یہ 15 حروف آتے ہیں۔ میں ان کو پھر ایک بار رپیٹ کرتا ہوں۔ حروف اخفا 15 ہیں: تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف۔ یہ تا سے اور کاف تک آتے 15 حروف آتے ہیں ٹوٹل، انہیں حروف اخفا کہتے ہیں۔ اب میں نے ابھی آپ سے کہا انہیں حروف اخفا کیوں کہتے ہیں؟ بیکاز ان حروف میں اخفا ہوتا ہے۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے کوئی بھی حرف آئے تو اخفائے حقیقی ہوگا۔ وہاں تھا نا پیچھے تنوین اور نون ساکن کے اظہار میں کیا تھا؟ تنوین یا نون ساکن کے حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے کوئی بھی حرف آئے تو اظہار حلقی ہوگا۔ تو یہاں کیا آئے گا؟ یہاں آئے گا تنوین اخفا میں کیا آئے گا؟ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے کوئی بھی حرف آئے تو اخفائے حقیقی ہوگا، یعنی تنوین اور نون ساکن کی آواز کو ناک میں چھپا کر غنہ کے ساتھ پڑھیے، اسے اخفا کہتے ہیں۔ اب ایگزامپل جیسے اردو کے نون کو جیسے ہم پڑھتے ہیں نا، ہم اردو میں پڑھتے ہیں یہ پنکھا۔ اب جو پنکھا ہم بولتے ہیں، جیسے فین ہوتا ہے ہمارے گھر میں، فین، اس کو چونکہ اردو میں پنکھا بولتے ہیں۔ اب اردو میں پے نون کی فیلفا، پنکھا۔ اب پنکھا کا جو نون ہے نا، اس کو ہم وہاں پر چھپا دیں، جیسے ہم پنکھا، پنکھا مت پڑھتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں پنکھا۔ اسی طرح ہم بولتے ہیں بانس، بانس جو لکڑی کے قسم ہوتی ہے، بانس۔ اب بانس مت ہوتا ہے، بے الف با نون سین، بانس، وہاں نون کو چھپاتے ہیں، ٹھیک۔ اسی طرح بینس، اسی طرح پنکھا۔ تو اسی طرح انگور، انگور مت ہوتا، انگور، الف نون گاف واو رے، انگور، انگور جو فروٹ ہے، کھاتے ہیں پھل، انگور، انگور نہیں۔ اسی طرح یہ جو میں پہلی اگزامپل دی پنکھا، تو پنکھا نہیں۔ تو اسی طرح یہاں عربی میں تنوین یا نون ساکن کے بعد اگر ان 15 حروف میں سے جو میں نے ابھی پڑھے، تا سے کاف تک جو 15 حروف جو میں نے پڑھے، ان حروف میں سے کب تنوین یا نون ساکن کے بعد کوئی بھی حرف آئے تو اخفائے حقیقی ہوگا، یعنی تنوین اور نون ساکن کی آواز کو ناک میں چھپا کر غنہ کے ساتھ پڑھیے،
जैसे अरबी में एग्जांपल देंगे, जैसे तमुविरु किरामन कातिबीना। देखिए बहुत सारे पढ़ते हैं, बहुत सारे 99% या 98% में अगर कहूँ शायद गलत नहीं होगा, क्योंकि मैंने देखा है, मैंने एक्सपीरियंस किया कि कुरान सारे अच्छा पढ़ गया, कुरान अगर सारे पढ़, लेकिन इख्फा कोई नहीं करता है। इजहार सारे करेंगे, इजहार सारे करेंगे, लेकिन इख्फा कोई नहीं करता। ठीक, इख्फा में बहुत गलतियां करते हैं, पता ही नहीं होता है बहुत सारों को। तो जो है इसमें हमें ख्याल रखना कि इख्फा या तजवीद का, इनका हमें ख्याल रखना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमुविरु, हमज़ा नून ज़बर अन, ता ज़बर ता, अंता, मीम नून पेश मुन, अंतमुन, लाल देर दी, अंतमुवि, रॉ पेश रू, अंतमुविरु। देखिए सारे लोग पढ़ते हैं अंतमुनज़िरो, हालांकि अंतमुनज़िरो नहीं, माना नहीं बिगड़ेगा, लेकिन इस तरह पढ़ना ठीक नहीं है तजवीद में। तजवीद के खिलाफ है, बल्कि यहाँ इख्फा होगा, अंतमुविरु, इसी को इख्फा कहते हैं। ये अंता को अंता पढ़ना, मुनज़िरो को मुविरु, इसको इख्फा कहते हैं। लेकिन आम तौर पर जो सारे जो इख्फा नहीं करते हैं, मेजॉरिटी में मैक्सिमम लोग जो इख्फा नहीं करते हैं वो अंता मुनज़िरो पढ़ते हैं, जबकि ये ऐसा गलत है, तजवीद के खिलाफ है। असल में है अंतमुविरु। अब इजरा करेंगे। अब देखो, अब हमज़ा की ज़बर ये नहीं आएगा, बिकॉज हमज़ा नून के साथ मिलके गिर गया। क्यों मिला हमज़ा नून के साथ? क्योंकि नून के ऊपर जज़म है, जज़म वाले हरफ को पीछे वाले हरफ के साथ मिलाकर पढ़ते हैं। जब ज़बर ज़ेर पेश, दो ज़ेर दो पेश, दो ज़ेर दो ज़बर दो पेश वाला हरफ जब जज़म वाले हरफ के साथ मिलता है वो गिर जाता है। तो सीधा हम करेंगे, नून साकिन के बाद हरूफ इख्फा के 15 हरफों में से ता है, इसलिए इख्फाए हकीकी होगा, यानी नून साकिन की आवाज़ को नाक में छुपा कर गुन्नाह के साथ पढ़िए, इसे इख्फा कहते हैं। इख्फा की मिकदार एक अलिफ के बराबर है। अब इख्फा की मिकदार एक अलिफ के बराबर मतलब जैसे ता, ये एक अलिफ के बराबर, मतलब इस इतनी क्वांटिटीज़ में खींचना, इसको एक अलिफ के बराबर, जैसे ता, ये एक अलिफ के बराबर। तो फिर वही ताकि ज़बर को जल्दी पढ़े, या ये इजरा हम पढ़ चुके हैं। तो मुनज़िरो का इजरा क्या आएगा? शाबाश। नून साकिन के बाद हरूफ इख्फा के 15 हरफों में से ज़ाल है, इसलिए इख्फाए हकीकी होगा, यानी नून साकिन की आवाज़ को नाक में छुपा कर गुन्नाह के साथ पढ़िए, इसे इख्फा कहते हैं। इख्फा की मिकदार एक अलिफ के बराबर है। अच्छा, कल भी मैंने बताया था जब इजहार का इजरा करा रहा था, वहाँ मैंने कहा था कि जब हम ज़बानी पढ़ते हैं ना, ज़बानी जब हेडिंग सुनानी होती है, क्योंकि इसकी हेडिंग हेडलाइन ज़बानी याद होनी चाहिए, तो वहाँ हम बोलेंगे तनवीन और नून साकिन की आवाज़ को, यानी वहाँ दोनों को ऐड करेंगे, तनवीन भी नून साकिन की, क्योंकि तनवीन के बाद भी आ सकता है, नून साकिन के बाद भी आ सकता है। अब लेकिन जहाँ देख के सुना, जब हम देख के इजरा करते हैं, वहाँ जब नून साकिन के बाद आए तो जहाँ नून साकिन के बाद आए तो वहाँ नून साकिन बोलना है, और जहाँ तनवीन के बाद आए वहाँ तनवीन बोलना है। दो ज़ेर आए तो दो ज़ेर की तनवीन के बाद, दो ज़बर की तनवीन के बाद आए तो दो ज़बर की तनवीन के बाद बोलना है, और दो पेश की तनवीन के बाद आए कोई हरफ तो दो पेश की तनवीन के बाद बोलना है, यानी नाम लेके बोलना है। तमुविरु किरामन कातिबीना, काफ ज़ेर की, रॉ अलिफ ज़बर रॉ, की रॉ, मीम दो ज़बर मन, किरामन। अभी इख्फा नहीं, अभी जब जैसे मीम दो ज़बर मन, अभी इख्फा नहीं करना। अब जब बात पढ़ेंगे ना हुर्फ इख्फा का, काफ अलिफ ज़बर का, अब आएगा काफ अलिफ ज़बर का, अब क्या आएगा? इख्फा। किरामन का, ता ज़ेर ती, किरामन काती, बाया ज़ेर बी,
किरामन कातिबी, नून ज़बर ना, किरामन कातिबीना। तो पुराना इजरा तो वही है, ये रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आप पढ़ चुके हैं। काफ़ी नीचे ज़ेर है, ज़ेर को जल्दी पढ़े, थोड़ा बिना खींचे। इसी तरह अलिफ से पहले ज़बर इसे अलिफ मद्दा होगा, अलिफ मद्दा को एक अलिफ की खींच कर पढ़िए, रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। तो सीधा करिए, मीम के ऊपर दो ज़बर की तनवीन है। देखो मैंने कहा दो ज़बर की तनवीन के अलिफ लिखा जाता, पढ़ा नहीं जाता है। तो मीम के ऊपर दो ज़बर की तनवीन है, दो ज़बर की तनवीन के बाद हरूफ इख्फा के 15 हरफों में से काफ है। कौन सा काफ? छोटा काफ है, इसलिए इख्फाए हकीकी होगा। यानी दो ज़बर की तनवीन को नाक में छुपाकर गुन्नाह के साथ पढ़िए, इसे इख्फा कहते हैं। इख्फा की मिकदार एक अलिफ के बराबर है। इख्फा की मिकदार मतलब कि एक अलिफ के क्वांटिटी में एक अलिफ के बराबर इसको खींचना है। जैसे किरामन का ये एक अलिफ बराबर, तो बाकी वही अलिफ से पहले ज़बर है इसलिए अलिफ मद्दा होगा, अलिफ मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़िए। किरामन कातिबीना, कुन्तु तुराबन, काफ नून पेशकुन, ता पेशतु, कुन्तु, ता पेशतु, कुन्तु तु, रा खड़ा ज़बर रा, कुन्तु तुरा, बा दो ज़बर बन, कुन्तु तुराबन। इजरा करिए, नून साकिन के बाद हुरूफ इख्फा के 15 हरफों में से ता है, इसलिए इख्फाए हकीकी होगा। यानी नून साकिन की आवाज़ को नाक में छुपा कर गुन्नाह के साथ पढ़िए, इसे इख्फा कहते हैं। इख्फा की मिकदार एक अलिफ के बराबर है। यहाँ तक पूरा इजरा करना है, या इख्फा की मिकदार एक अलिफ के बराबर यहाँ तक। कुन्तु तुराबन, यतीमन फ़आवा, या ज़बरिया ताया ज़ेरती, यती मीम दो ज़बर मन, यतीमन, फ़ा ज़बर फ़ा, यतीमन फ़ा, हमज़ा खड़ा ज़बर आ, यतीमन फ़आ, वाव खड़ा ज़बर वा, यतीमन फ़आवा। अब यतीमन फ़आवा के जो लास्ट में है ना या लिख के, या लिखा जाता है बट पढ़ा नहीं जाता है। तो सीधा करे इजरा, मीम के ऊपर दो ज़बर की तनवीन है, दो ज़बर की तनवीन के बाद हरूफ इख्फा के 15 हरफों में से फ़ा है, इसलिए इख्फाए हकीकी होगा। यानी दो ज़बर की तनवीन को नाक में छुपाकर गुन्नाह के साथ पढ़िए, इसे इख्फा कहते हैं। इख्फा की मिकदार एक अलिफ के बराबर है। यतीमन फ़आवा, देखो गुन्ना नहीं बोलना है, एक गुन्ना वो गुन्ना होना है जैसे झूठ बोलना, चोरी करना, यहाँ वो गुन्ना मुराद नहीं है। गुन्ना जैसे उर्दू में भी होता है, नून गुन्ना बोलते हैं, यानी छुपाना, आवाज़ नाक में छुपाने को बोलते हैं गुन्ना करना। जैसे उर्दू में भी एक आम लफ्ज़ बोलते हैं नून गुन्ना, जिस नून पे नुक्ता नहीं होता है उसे नून गुन्ना कहा जाता है। मन दखलहू, मीम नून ज़बर मन, दाल ज़बर दा, मन दा, खा ज़बर खा, मन दखा, लाम ज़बर ला, मन दखला, हा उल्टा पेश हू, मन दखलहू। नून साकिन के बाद हरूफ इख्फा के 15 हरफों में से दाल है, इसलिए इख्फाए हकीकी होगा। यानी नून साकिन की आवाज़ को नाक में छुपाकर गुन्नाह के साथ पढ़िए, इसे इख्फा कहते हैं। इख्फा की मिकदार एक अलिफ के बराबर है। मन दखलहू, रसूलिन करीमिन, रा ज़बर रा, सीन वापिस सू, रसू, लाम दो ज़ेर लिन, रसूलिन, काफ ज़बर का, रसूलिन का, रोया ज़ेरी, रसूलिन करी, मीम दो ज़ेर मिन, रसूलिन करीमिन। करिए इजरा, लाम के नीचे दो ज़ेर की तनवीन है, दो ज़ेर की तनवीन के बाद हरूफ इख्फा के 15 हरफों में से काफ है, इसलिए इख्फाए हकीकी होगा। यानी दो ज़ेर की तनवीन को नाक में छुपाकर गुन्नाह के साथ पढ़िए,
اسے اخفا کہتے ہیں۔ اخفا کی مقدار 1 الف کے برابر ہے۔ اب آپ کے سامنے کوئی پڑھے گا من دخلہ رسول کریم، آپ فوراً سمجھ جاؤ گے، آپ کو فوراً سمجھ جانا چاہیے کہ اس نے تجوید کی خلاف پڑھا، غلط پڑھا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اخفا نہیں کیا، یہاں اخفا ہوتا ہے، رائٹ؟ رسول کریم، چونکہ پہلی ابھی تک ویڈیو آلموسٹ 15 منٹ تک پہنچ گئی، اس لیے یہاں تک رکھیں گے۔ انشاءاللہ کل ہم اس کو آگے کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ۔ کل یہ چیپٹر نمبر 10 کمپلیٹ ہو جائے گا۔ السلام علیکم۔